our next class on the UPSC mains answer writing. So, our first question: to what extent is strategic autonomy viable for India in a globalized world? Discuss India's evolving relationship with the United States, examining the tensions between the alignment and the self-reliance. Introduction. So, the strategic autonomy, traditionally understood as the ability of a nation to pursue its national interest without external coercion. सो यहाँ पे ये जो बोला गया है पहली बात तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो कि ट्रेडिशनली अंडरस्टूड एज द एबिलिटी ऑफ ए नेशन टू परस्यू इट्स नेशनल इंटरेस्ट विदाउट एनी एक्सटर्नल कोएर्शन. एक्सटर्नल फोर्स की जगह कोएर्शन आप इस्तेमाल कर सकते हो. सो व्हाट इज इट? has long guided India's foreign policy from non-alignment during the Cold War to multi-alignment today. देखो ये एक फ्रेज है, तो ये इसको एक तरह इस्तेमाल किया गया है. वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब ट्रेडिशनली जो यहाँ से कॉमा स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कॉमा खत्म हुआ. तो ये जो एक सेंटेंस है, ये इसका मतलब है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. So strategic autonomy has long guided India's foreign policy from non-alignment during the Cold War to multi-alignment today. So strategic autonomy जो कि इंट्रोडक्शन में यही कहा गया है, ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से स्टार्ट होकर जो मल्टी अलाइनमेंट आज की डेट में है इंडिया, तो ये अभी गाइड करता रहा है हमेशा से. फ्रॉम ए वेरी बिगिनिंग इट इज गाइडिंग ऑफ टुवर्ड द व्हाट इट इज टुडे. Next is, however, in an increasingly globalized and interdependent world, mainly maintaining absolute autonomy is increasingly complex. So it's obvious बात है कि that in an increasingly globalized and interdependent world, जो हम एक दूसरे के साथ जो हर एक देश यहाँ पे each and every nation is somehow connected and interdependent on the other nation, and it is not possible, not in a very complex that to be strategically complete or absolute autonomy को, जो absolute autonomy को मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे, especially amid technological dependencies, security threats and economic इंटरकनेक्टेडनेस. देखो इंटरकनेक्टेडनेस हम सब सारे दुनिया भर में जितने भी देश हैं तो वो सारे ही नेशंस, ऑल द नेशंस आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट आल्सो. So that's why it is not possible to be fully autonomy or absolute autonomy of the nation. Description. The viability of strategic autonomy today, face practical constraints. Constraints one was the rest one why. In the technology and defense sector, India relies heavily on import, especially from the US, Russia and Israel. So in the field of the defense, India heavily relies on the imports from the US, Russia and Israel. In trade, India is integrated into global value chain. वो तो था डिफेंस की बात. So in trade, India is integrated into global value chains, but lack leverage in rule-making forum like the WTO. So ये इस पॉइंट में ये कहा गया है जो ट्रेड इंडिया इज इंटीग्रेटेड इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन. तो जो वैल्यू हमें मिल रही है या फिर जो वैल्यू से हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, इसमें हम इंटीग्रेट तो है, बट जो पॉलिसी मेकिंग, रूल मेकिंग फोरम लाइक द WTO, उसमें हमारा कोई ज्यादा रोल है नहीं. इट लैक लिवरेज.
it lacked the support or it lacked any participation in the decision making. तो जो भी बड़े decisions all the big decisions that is taken by the WTO, so India is not a part of that decision making committee or decision making forum. In multilateral diplomacy, India seeks reform but often faces power asymmetries from entrenched global actors. देखो ग्लोबल सुपर पावर्स ग्लोबल पावर्स मत बोल के ग्लोबल एक्टर्स भी बोलोगे entrenched ग्लोबल एक्टर्स मतलब जो पावर सुपर पावर्स है तो इसमें यही कहा गया है इन मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी इंडिया सीक रिफॉर्म्स जो डिप्लोमेसी में भी मतलब जो पॉलिसी मेकिंग चल रहा है थ्रू द वर्ल्ड इंडिया रिफॉर्म लाना तो चाहता है बट ऑफन फेसेस पावर एसिमेट्रीज ये एक अच्छा फ्रेज हो सकता है पावर एसिमेट्रीज इट फेसिंग ए पावर एसिमेट्री फ्रॉम द एंट्रेंस्ड ग्लोबल एक्टर्स ये इंटरनेशनल रिलेशन में इस चीज का बहुत इस्तेमाल होगा दैट पावर एसिमेट्री सो इसमें यही कहा गया है तो इस पावर एसिमेट्री मतलब जो डिवाइड ऑफ द पावर मीन्स द सुपर पावर possess the multi they have the more importance than the developing nations. Next is India's relationship with the United States has evolved significantly, marked by convergence in defense, in from like the Kumkasa and Beka agreement, technology, Indus X, and strategic vision, Indo-Pacific cooperation. तो ये इस तरह से आपको लिखना भी है जहां पर भी अगर आप लिख रहे हैं कि जो एग्रीमेंट हुआ है मार्क्ड बाय कन्वर्जेंस इन डिफेंस एग्रीमेंट like the Kumkasa and Beka technology Indus X in technology Indus X in agreement Kumkasa and Beka strategic vision Indo-Pacific cooperation. Initiative like Quad and I2U2 जो यूनाइट इंडिया टू यूएस यूनाइटेड स्टेट्स और क्वाड अंडरस्कोर्स दिस ग्रोइंग सिनर्जी. तो ये जो इनिशिएटिव लाइक क्वाड हो गया I2U2 हो गया ये हाईलाइट कर रहा है दिस इज हाईलाइटिंग द ग्रोइंग सिनर्जी ऑफ इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. However, tensions remain between alignment and self-reliance. It's obvious that tension will always remain between the alignment and self-reliance. आप कितने alignment हो मतलब आप कितने dependent हो और कितना self-reliance हो. Next is India's reliance on the US technology firms clashes with data sovereignty. ऑब्वियस बात है जो डेटा सॉवरेनिटी है मतलब हमारा बहुत सारे जो हो गया जैसे गूगल हो गया फेसबुक हो गया बहुत सारे हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है पूरा गूगल के ऊपर आधारित हुआ है जो चल रहा है वो गूगल के से ही चल रहा है. तो ये जो उनके टेक्नोलॉजिकल फार्म है तो वो सब इंडिया की डेटा को लेकर किस तरह से वो डेटा सॉवरेनिटी का मतलब ही होता है कि वो डेटा सॉवरेनिटी कि एक डेटा को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हो उसमें हमारा कितना अधिकार है जानने कि हम जान सकते हैं या नहीं कि आप हमारी डाटा लेकर क्या कर रहे हो और क्या कहाँ पे स्टोर करे रख रहे हो. तो डेटा सॉवरेनिटी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है दैट इज जीरो डेटा सॉवरेनिटी. तो वही कहा गया है विद डेटा सॉवरेनिटी गोल्स डिफेंस प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द वेस्ट में इरोड इंडिजिनियस एफर्ट लाइक द मेक इन इंडिया. So India's reliance on the US tech firm clashes with data sovereignty. Goals, defense procurement from the West, it is eroding the indigenous effort like the Make in India. ये भी obvious बात है. The defense procurement जो चल रहा है वो भी कुछ हद तक हमारी Make in India को बहुत अफेक्ट कर रहा है.
वो अफेक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी है नहीं, तो अभी के लिए फिलहाल तो ऐसे कुछ कर भी नहीं सकते. नेक्स्ट इज nationalist discourse advocating the Atmanirbhar Bharat sometimes contradict the logic of global supply chain. So nationalist discourse जो कि एडवोकेट कर रहे हैं, जो भी नेशनलिस्ट है इंडिया में, जो एडवोकेट कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, इट समटाइम्स कंट्राडिक्ट द लॉजिक ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन. मतलब अगर आप ग्लोबल सप्लाई, इफ यू आर ए पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन, then there has to be dependency and there has to be interdependence among the nations. तो ये कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट की बातों को ये अलग कॉन्ट्राडिक्शन में जा रहा है. कंफ्यूजन इन टुडेज मल्टीपोलर वर्ल्ड. देखो हमारी जो जयशंकर साहब ने भी हमेशा से ये बात कहा है, टुडेज मल्टीपोलर वर्ल्ड, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ये हमेशा से मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं, तो इसी बारे में इन टुडेज मल्टीपोलर वर्ल्ड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मस्ट बी रीइमेजिन्ड नॉट एज रिजिड आइसोलेशन बट एज फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप. ऑब्वियस बात है, नॉट एज ए रिजिड आइसोलेशन. अगर हो गया रिजिड आइसोलेशन होने से बहुत ज्यादा नुकसान होगा किसी भी कंट्री को. rather than we should take it as a flexible partnership. India's task India's task is to balance alignment with capability building, ensuring that cooperation enhances, not compromises, national sovereignty and resilience. ये एक अच्छा फ्रेज हो सकता है, कोऑपरेशन एनहांसेस. ये कहीं पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो. इट शुड एनहांस नॉट कंप्रोमाइज द नेशनल सोवरेनिटी एंड रेजिलियंस. एक अच्छा, ये था इसका पहला वर्ड. तो इस पहला क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन, examining the limitations of the consensus based decision making model under the United Nations framework Convention on Climate Change. So UNFCCC जो कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसी की डिसीजन मेकिंग के ऊपर एक सवाल है. Why has it failed to ensure timely and effectively climate action, suggest reform to democratize global climate negotiations, suggest reform for it. Introduction. The consensus-based decision-making. So, introduction है, the consensus-based decision-making model under the UNFCCC was designed to ensure inclusivity, giving every country, regardless of size or power, a voice in global climate governance. So UNFCCC मतलब यहाँ पर भी क्लाइमेट की, हमारे क्वेश्चन में अगर ये पूछ रहा है कि क्लाइमेट के बारे में कुछ भी बातें कर रहा है, तो UNFCCC के बारे में भी वहाँ पे हमें मेंशन कर देना चाहिए. कुछ भी मेंशन होगा तो ये एक अच्छा इफेक्टिव, एक अच्छा इंप्रेशन कर सकता है वहाँ पे. तो इसमें यही कहा गया है. तो ये जो कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग वहां पर इसलिए रखा गया था ताकि जो इंक्लूसिविटी मिल सके, सारे each and every nation should get its the power, I mean the opportunity to speak in the global climate governance. Next stage. While this approach, ये जो consensus based approach है, while this approach aims to build a universal agreement, it has increasingly become a bottleneck in a world where climate urgency demands swift and ambitious action. ये भी एक अच्छा फ्रेज को तरह इस्तेमाल करते हैं. क्लाइमेट अर्जेंसी डिमांड स्विफ्ट एंड एम्बिशियस एक्शन, नॉट
ऐसा नहीं कि हमें देर हो जाए, कहीं बहुत देर ना हो जाए, तो देयर शुड बी स्विफ्ट एंड एम्बिशियस एक्शन इन द क्लाइमेट अर्जेंसी। तो इसमें यही कहा गया, while this approach aims to build universal agreement, it has increasingly become a bottleneck in a world where climate urgency demands swift and ambitious actions. As climate crisis escalate, the model's procedural rigidity hampers timely interventions. तो ये जो हैम्पर टाइमली इंटरवेंशंस को कौन ये कर रहा है, जो प्रोसीड्यूरल रिजिडिटी, मतलब एक ही प्रोसीड्यूर है, होकर इसी प्रोसीड्यूर में जाएगा, बहुत सारे सारे लोगों की जो होता है एक एग्रीमेंट, सबकी साइन होने के बाद हम इस तरह काम करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारी डिले कर रहा है हमारी क्लाइमेट एक्शन को। डिस्क्रिप्शन, तो क्या क्या है, डी फैक्टो वीटो पावर, इवन ए सिंगल कंट्री कैन ब्लॉक प्रोग्रेस अलाउइंग मेजर एमिटर और फॉयल और फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट नेशन टू डाइल्यूट और डिले क्रूशियल एग्रीमेंट। तो क्रूशियल एग्रीमेंट को इवन जो डी फैक्टो वीटो पावर दिया गया है, तो एक ही नेशन अगर चाहेगा तो ये पूरी प्रोसेस को ब्लॉक कर देगा। जो मेजर एमिटर्स और जो फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट नेशन है, तो उसमें इनके इसमें दैट विल ब्लॉक द दैट country or the nation which is more dependent on the fossil fuel, तो वो देश भी वो आगे निकलता जाएगा, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा पा रहा है, क्योंकि इस पर डी फैक्टो वीटो पावर की वजह से। डाइल्यूटेड आउटकम्स, is to secure agreement from all parties, decisions are often watered down to lowest common denominator, thus sacrificing ambition for unanimity. देखो ये एक अच्छा चीज जो लोएस्ट कॉमन एलसीडी की तरह लिखा गया है, तो इसमें यही कहा गया है कि इसका मतलब डिसीजंस आर ऑफन वाटर्ड डाउन टू लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, मतलब जो लीस्ट, जिसका काम कुछ भी नहीं होगा, जो उस एक्शन में कोई काम नहीं रहेगा, उसके लिए ऊपर भी हम डिसीजन नहीं, मतलब वो सबसे जो नीचे बैठा है उसी के काम, वो उसका राय मांगने के बाद कि क्या वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, तो उसकी बातें सुनेंगे जो सबसे उसका को, जबकि उसका कोई काम है भी नहीं इस अग्रीमेंट में हो या किसी भी रोल में, उसका कोई, अगर हम उसे ना भी पूछे तो भी चलेगा, लेकिन नहीं, हम उसे पूछेंगे तभी जाकर बात आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, तो डिसीजन जो है वो ऑफन वाटर्ड डाउन टू लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, सो दस सैक्रिफाइसिंग एम्बिशंस फॉर यूनानिमिटी, दस सैक्रिफाइसिंग एम्बिशन जो यूनानिमिटी को ये कर रहा है, एक अच्छा फ्रेज हो सकता है। इन्फ्लुएंस ऑफ फॉसिल फ्यूल लॉबीज, फॉसिल फ्यूल लॉबी, ये एक अच्छा फ्रेज, बहुत अच्छा फ्रेज हो सकता है इसको इस्तेमाल करने। द फॉसिल फ्यूल रिप्रेजेंटेटिव्स इन नेगोशिएशन वीकेंड्स ट्रस्ट एंड शिफ्ट प्रायोरिटीज अवे फ्रॉम क्लाइमेट जस्टिस। जो ये ऑब्वियस बात है, जो फॉसिल फ्यूल रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब जो ये डेवलप्ड नेशन की बात कर रहा है, तो अगर क्लाइमेट के रिलेटेड किसी भी चीज पे whenever you are writing something and try to input these types of words, fossil fuel lobbies, fossil fuel representatives, ये काफी अच्छा इंप्रेशन लाएगा। रीजन फॉर फेलियर क्या है? लैक ऑफ एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, so agreement like the Paris Accord rely on voluntary national pledges without any legal binding। मतलब लैक ऑफ, अगर हम ऐसे ही बोल देंगे कि हम पेरिस एग्रीमेंट जिस तरह में हुआ था, तो उसमें ये कहा गया कि सारे एवरी नेशन विल कम वॉल्यूंटरीली, अरे वो अपनी मर्जी से आकर थोड़ी ना ऐसे साइन करेगा, अगर कर भी रहा है तो आप उस पर कोई भी एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है, अगर कोई करेगा नहीं मैं नहीं करूंगा तो कुछ कोई बात नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे तो नहीं हो सकता। प्रोसीड्यूरल डिले, द नीड to build consensus among nearly 200 parties, prolonged negotiation causing paralysis
इन मोमेंट्स दैट डिमांड क्विक डिसीजन, ये भी causing paralysis in movements that demand quick decision। तो इसमें ये प्रोसीड्यूरल डिले बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज क्लाइमेट फाइनेंस गैप। ये तो बहुत अच्छा है, इसी तरह समझ में आ रहा है, क्लाइमेट की फाइनेंशियल गैप भी वहां पर है। तो रिफॉर्म क्या क्या हो सकता है? क्वालिफाइड मेजोरिटी वोटिंग। तो इसमें ये कहा गया है कि क्वालिफाइड मेजोरिटी वोटिंग मतलब इंश्योर दैट मेजोरिटी वॉइस मूव्स क्लाइमेट एक्शन फॉरवर्ड। जो मेजोरिटी वॉइस है वो क्या कह रहा है उसकी बात सुना जाए, ना कि हम जो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर की का बात वहां पर करी गई कि डिसीजंस आर ऑफन वाटर्ड डाउन टू द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। हम जो आखिरी पे रह गया, जो बहुत उसका जिसका राय भी कुछ नहीं जाता, जैसे आइसलैंडिक नेशन हो गया, वो बहुत छोटा सा देश है लेकिन उसने अपना काम भी बहुत अच्छे से कर लिया है। तो उसमें उसका ज्यादा कोई काम होना नहीं चाहिए कि क्लाइमेट एक्शन, अरे जो इतना सा छोटा सा देश है तो उसका राय भी ज्यादा जरूरी नहीं होता है। मतलब इसलिए नहीं कि वो छोटा सा देश है, बल्कि इसलिए उसने अपना मतलब वो वहां की जो क्लाइमेट को है उसने उसके लिए काम भी किया है और उस देश ने अपने हिसाब से काम कर लिया है अच्छे से। नेक्स्ट इज एनहांस्ड वॉइस फॉर वल्नरेबल नेशन। जो वल्नरेबल नेशन है उसके लिए एनहांस वॉइस होना ही जरूरी है। इट्स मेजर इशू इज दैट दैट शुड बी एनहांस्ड वॉइस फॉर द वल्नरेबल नेशन। नेक्स्ट इज एक्सक्लूजन ऑफ लॉबिंग इंटरेस्ट। लॉबिंग इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करना चाहिए, ना कि उसमें इंक्लूड करना चाहिए, तभी जाकर ये चीजें आगे बढ़ सकती है। अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी वहां पे जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। कंक्लूजन, while the consensus model while the consensus model uphold the spirit of inclusivity, it must evolve to match the pace and scale of climate emergency। बहुत अच्छी बात लिखी गई है, इसे नोट डाउन करके रख सकते हैं। इट मस्ट इवॉल्व टू मैच द पेस एंड स्केल ऑफ क्लाइमेट इमरजेंसी। हमें इंक्लूसिविटी के साथ साथ अपने पेस को भी मेंटेन करना पड़ेगा। दैट्स द मेजर गोल, दैट शुड बी द मेजर गोल। A delicate balance is needed, one that preserves equity while enabling decisiveness। तो इसमें यही कहा गया है, ए डेलिकेट बैलेंस जो होता है, वन दैट प्रिजर्व द इक्विटी व्हाइल एनेबलिंग द डिसिसिवनेस। इक्विटी को भी हम मेंटेन करेंगे, मतलब हम सबको इक्वल भी लेंगे और सबको डिसिसिवनेस पे भी हम एनेबल करेंगे। तो ये था इसका कंक्लूजन, ये था। तो ये दोनों सवाल थे।